मॉर्निंग एवरीवन, am I audible and visible? आप बताइए, हैव यू हैड अ डिस्कशन एनी डे बिफोर ऐसा कुछ on RBI monetary policy and the system of the working of RBI? Okay, Jatin is saying no. Okay, let us try and understand how the system works in our country. The most important point is why I am discussing, because banking industry is one of the very key thing, and it is a major job provider to a country. Okay, so in a broader sense, when you will identify the system that the India works, the India follows, we need to understand how it actually works. Okay, so the most important role of RBI is to manage monetary flow of a country. So that comes under the monetary policy part. So when I say monetary policy, that itself means where the flow of money into the system. Flow means incoming and outgoing both. So the RBI is the main role is to consider that apart from regulating banks, bank regulation can be considered as their main work, their primary work. It's a regulator to all commercial bank in our country. But on a broader context, RBI's main role is one of the major role is to manage the flow of the money. Okay, so if the flow of the money will not be considered properly, not checked properly, practically that may happen that we will end up in a crisis. It could be an inflation problem. It could be the problem in terms of flow of money can be very unstable, and that can lead to a long term crisis that probably we have faced in after our independence. Or majorly you can think about the countries like recently we have seen in Venezuela, then we have seen in Zimbabwe. So these countries have already faced the problem because of the management of their central bank. RBI in our country, it's called it as RBI, but generally we can give it a name as a central bank, which basically regulate banks. So apart from regulating, they need to consider that the flow of money should be smooth. There should not be any liquidity problem. There should not be any extra liquidity. It's as simple as that. Whatever be the need, whatever be the requirement, that requirement of the money should be there in system. This is what one of the very tough tasks, to maintain the requirement need के हिसाब से the amount of money into the system. So this is the something which is a key point which we need to understand, and I will be explaining in very basics. Will not be going with very detailed thing. If that subject is in your syllabus, you may be reading, you may be learning in a very detailed manner, but I'm discussing today in terms of the points which is majorly required to understand, because something which is very crucial in daily newspaper you will find these things. Okay, so today I will be showing you the RBI website. Also today I will be giving you the different types of things. So broadly, let us try and understand the management system, how it works. So when I say the RBI, the main task of RBI is to control inflation in our country. Inflation means we know that the rises of the prices are going up. So how RBI manages the flow? Do you think, what do you think, what can be the process that RBI can follow to manage inflation? कैसे आप महंगाई को रोक सकते हैं आरबीआई? एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे? प्याज के दाम, कोई भी पल्सेस के दाम, कोई भी प्रकार का जो अनाज है उसके दाम, हाउ दे विल गोइंग टू मैनेज आरबीआई? क्या वो सारे दुकानदारों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया आप पैसे कम रखो, प्राइस कम रखो, ऐसा होगा? हाउ दे विल मैनेज? So try and understand. RBI can't manage the prices of the goods. Okay, so RBI need to manage only the flow of money. RBI can manage only the flow of money. So practically speaking, if you can understand, there are two ways in which inflation can be managed. So first of all, we need to understand the two ways. One
inflation is the key thing which is actually decides the entire factor of policies, rate, policies, understanding, right? So inflation can be managed by two ways. You can define inflation in two ways. First will be rises in prices, rises in price of commodities, प्राइस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, यहां पे मेजरली हर्ट क्या करता है आपको, इसेंशियल कमोडिटीज जो है, जो खाने पीने के आइटम्स हैं, जो बहुत ही क्रूशल है। ऐसे तो कमोडिटी में आपका ऑयल भी आएगा, कमोडिटी में आपका गोल्ड भी आएगा, कमोडिटी में आपके बाकी और भी चीजें, सिल्वर आएंगे, अदर थिंग्स भी आ सकती हैं, but essential commodities are key. So rise in price of a commodity is also inflation. Second will be considered as value of money, value of money reducing. So value of money reducing is also considered as inflation. So there are two definitions of it. Practically speaking, you can understand RBI can't manage the rises of price. Directly, they cannot manage. They can't go to an onion vendor or a potato vendor and ask them to reduce the price. They need to check on basically how the value of money can be reinstated, can be re-established as the previous one. So their main task is to improve the money of value of money, and that is the way they can check inflation. So practically speaking, value of money reduce होने का मतलब क्या हुआ, जब आपने ये प्रिंसिपल, आप इकोनॉमिक्स में हम सब ने 10वीं तक पढ़ा है, 10th तक, irrespective of your 11th and 12th background, 10th तक we might have learned one important point, that is the इफ एनीथिंग, जिसका सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड उतनी नहीं है, और सप्लाई ज्यादा है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, मतलब उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो यहां पर भी वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूसिंग होने का मतलब ही यही है, प्राइस इज डिक्लाइनिंग, प्राइस इज रिड्यूसिंग। सो इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मनी सिस्टम पे है। अगर आपने एक पानी भरने के लिए बाल्टी का आप इस्तेमाल करते हैं, नल से आप बाल्टी भरते हैं पानी के लिए, राइस डेली के लिए, सो जितनी रिक्वायरमेंट होता है उतना ही पानी रखते हैं। कभी आपको हाफ की जरूरत है तो हाफ रखते हैं, कभी फुल की जरूरत है तो फुल रखते हैं। बट अगर फुल होने के बाद भी आप पानी का नल चालू रखते हैं तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो होने लगता है। और यही एक्चुअली काइंड ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग है इन्फ्लेशन का। तो एक सिस्टम एक लिमिट तक उस पैसे को रख सकता है, और वो लिमिट होती है उसकी कैपेसिटी, और जैसे ही वो कैपेसिटी फुल हो गई तो उसके बाद पानी जो है जैसा ओवरफ्लो हो रहा है, वैसी जो मनी है वो भी ओवरफ्लो होने लगता है। तो वैल्यू ऑफ मनी मतलब ओवरफ्लो होने लगा, मतलब उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो यही बेसिकली इन्फ्लेशन का कारण बनता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है। अब वैल्यू ऑफ मनी को इन्फ्लेशन से कैसे रिलेट करेंगे, सीधी सी बात है, अगर एक आप कोई कमोडिटी है, उसको खरीदने के लिए आप 100 रुपए खर्च करते थे, बट बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी मतलब इतना ज्यादा पैसा सिस्टम में अवेलेबल है कि हर कोई उसको खरीदने की कोशिश करेगा, तो जो 100 रुपए की चीज है वो अब 105 में मिलने लगी। तो जो 100 का वैल्यू है वो अब एक्चुअली प्रैक्टिकली रिड्यूस हो गया, मतलब आप जो 100 रुपए में खरीदते थे उसके लिए 105 खर्च करना पड़ रहा है। तो ज्यादा खर्च करना पड़ा है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड। मतलब आप ऐसे भी लेके देख सकते हैं, आपने अपने पर्स में एक 100 का नोट रखा और वो 1 साल तक निकाला नहीं, अगले साल आपने जब वो निकाला तो वो 100 रुपए 100 ही रुपए दिखेंगे, बट जो पिछले साल आप जो चीज 100 रुपए में खरीद सकते थे वो इस साल आप 105 में खरीदेंगे, मतलब 5 रुपए और जोड़ के देना पड़ेगा, तब वो बेसिकली इन्फ्लेशन, तब वो बेसिकली आप उसको खर्च कर पाएंगे। मतलब वो 100 रुपए का कीमत गिर गया, नीचे आ गया, उसकी 100 रुपए की जो वैल्यू है वो कम होगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन में। तो ये एक बहुत की एस्पेक्ट है जो आपको समझना है ऑन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कंसिडरिंग दिस फैक्ट दैट इन्फ्लेशन बेसिकली इसी तरीके से बढ़ता है सिस्टम में, जब सिस्टम में बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी है। अब मुझे अगर वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस करना है, तो वैल्यू ऑफ मनी इंप्रूव करना है, उसको कम करना है, इंक्रीज करना है, तो प्रैक्टिकली मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रैक्टिकली
इन अ ब्रॉडर सेंस मुझे उन वैल्यू को वैल्यू को बढ़ाने के लिए सिस्टम में पैसे थोड़े कम करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, जो फ्लो आपका बाल्टी में जो पानी आ रहा है, राइट, वो जो पानी बाल्टी से में आ रहा है, उसको अगर आपने नल को बंद करना पड़ेगा तभी तो वो फ्लो पहले रुकेगा। तो पहले आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा, देन उसको रिड्यूस करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो यही बेसिकली सिस्टम होता है। अब अगर सिस्टम में जो पानी जो वैल्यू है, वो जो जो मनी है, वो बेसिकली उस उतना है जितने की रिक्वायरमेंट है या उससे कम है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब अब आप बेसिकली जैसे 100 रुपए की चीज है, अगले साल अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप प्रैक्टिकली अब ज्यादा परचेस कर पाएंगे अगले साल जाके। तो हो सकता है कि डिफ्लेशन, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं, जनरली नेगेटिव हो गया प्राइस। तो अगर 100 रुपए की चीज है, अगले साल वो आप उसी चीज को खरीदने के लिए 95 ही खर्च करना पड़ रहा है। मतलब अब आप ज्यादा परचेस कर पा रहे हो। क्यों परचेस कर पा रहे हो? कि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता नहीं है, पर वैल्यू ऑफ मनी घटता जरूर है। बट जनरली आप देखेंगे इंडिया जैसी इकोनॉमी में मनी, वैल्यू ऑफ मनी कभी ऐसा बढ़ेगा नहीं इमीडिएटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन ही वर्क करता है। जापान जैसी इकोनॉमी में आपको डिफ्लेशन मिलेगा कि हर साल प्राइस जो है वो कम होते जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे हर साल प्राइस बढ़ते ही क्योंकि इतना ह्यूज इकोनॉमी, 140 करोड़ का देश है। बट जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो किसी भी तरीके से आरबीआई प्राइजेस को नहीं कंट्रोल कर सकता, तो आरबीआई किसको कंट्रोल करता है? वैल्यू ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। ये इन्फ्लेशन को बचा के रखना इज द अल्टीमेट एंड मेजर मेजर गोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल एंड टेक्निकल, बिकॉज अगर मैं टेक्निकल चालू करूंगा या फिर हम डिस्कस करेंगे तो वो ना केवल बोरिंग होगा और इररेलेवेंट भी होगा। ये रेलेवेंट उनके लिए है टेक्निकल जो इसी चीज पे वर्क करने वाले हैं। एज मी, मैं, आप लोग, जो हम लोग यहाँ पे वर्क नहीं करते बैंकिंग में या ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बैंक के, तो हमको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए कि आरबीआई कंट्रोल कैसे कर रहा है। सो दिस इज बेसिक थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे इसको समझ करना चाहिए। अब ये कंट्रोल होता कैसे है? तो इस कंट्रोल को करने के लिए ही बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं बाय मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसका अल्टीमेट पर्पस होता है ये चेक करते रहना कि सिस्टम में पैसा कैसा है, ज्यादा है, कम है तो उसको बढ़ाना कितना है, ज्यादा है तो कितना कम करना है। तो ये इस तरीके का ये मेजर रोल चलता है। ये डेली रूटीन है, बट ब्रॉडली इसको चेक करने के लिए हर 3 महीने के बाद जनरली इनका एक रिव्यू सिस्टम होता है और उसमें पॉलिसी को चेंज करना या नहीं करने के डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में जो मेजर पॉलिसी रेट्स थे वो सेम रखे गए। तो ये आपको जैसे जैसे भी मैं आगे बढ़ूंगा तो समझ में आता चलेगा। ठीक है, अब पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक कैसे एक स्ट्रक्चर में वर्क करता है। कोई भी एक बैंक जो होता है वो कैसे होता है। जनरली मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं। कमर्शियल बैंक वो हैं जो शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड, जिसमें दोनों ही प्रकार के बैंक आ जाते हैं। शेड्यूल्ड बैंक बहुत स्पेसिफिक बैंक है जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में आते हैं, और जो शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पे नहीं आते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। अभी उससे भी ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आरबीआई एक्ट के अंदर शेड्यूल क्लॉज में आते हैं उनको शेड्यूल्ड बैंक बोला गया है, जिसमें जो आरबीआई के द्वारा सुप्रीम डिसाइडेड किए गए हैं। बट जो नॉन शेड्यूल्ड है वो जनरली ऐसे बैंक है जिनका उस शेड्यूल्ड में नहीं है, तो वो एक लोअर कैटेगरी वाले बैंक्स हैं जिनको आरबीआई की सारी फैसिलिटीज का नहीं मिलता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें बेसिकली समझने के पहले हमको बैंकों की बैलेंस शीट और उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि कैसे बैंक वर्क करते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए जाने वाले हैं भाई। ठीक है, तो बैंकों का जो बैलेंस शीट होता है वो पहले हमको समझना पड़ेगा। बैंकों का बैलेंस शीट, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड जो लाइबिलिटी है और असेट्स हैं। सो मेजरली बैंकों के लिए लाइबिलिटी क्या होता है? तो बैंकों का जो लाइबिलिटी होगा वो ब्रॉडली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, सो बैंकों का लाइबिलिटी मतलब उनके
उनको उनको जो हमने डिपॉजिट किया, आपने जो बैंकों को पैसे जमा किया, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो बैंकों का दो प्रकार का लाइबिलिटी होता है। एक होता है टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है। और दूसरा होता है बोरोइंग्स। और फिर कैपिटल वैपिटल भी रहता है। मैं एग्जैक्टली बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको ब्रॉडली जो हमें समझना है उसको बेसिस पे आपको बता रहा हूं। सो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी जो है बेसिकली, वो टाइम लाइबिलिटी का मतलब हुआ, टाइम लाइबिलिटी जो बैंकों के लिए जिसमें स्पेसिफिक टाइम के बाद ही डिमांड होती है, तो उसको बोलेंगे जैसे RD and FD, recurring deposit and fixed deposit, generally considered as time liability. Demand liability are basically जो कभी भी डिमांड की जा सकती है। जैसे आपने अकाउंट खोला और आपको पैसे रात को 3 बजे जरूरत पड़ गई, तो आप ATM से जाके निकाल सकते हैं। आजकल आप UPI के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं, ये अकाउंट कहलाते हैं कासा अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। आप कभी भी 24 घंटे इनका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। अब आजकल डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अभी कई कियोस्क खुल गए हैं जो रात को भी खुले रहते हैं, तो उनमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली जो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी है, वो ऑन अ ब्रॉडर स्केल RD FD और कासा के रूप में मतलब दिखा होती है। मतलब आप बैंकों में डिपॉजिट करने के आपके पास 4 रास्ते हैं। या तो आप सेविंग अकाउंट खोलो या करंट अकाउंट खोलो, या तो आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखो या रिकरिंग डिपॉजिट में। टाइम लाइबिलिटी तुरंत नहीं डिमांड कर सकते आप। रात को उठ के आप FD नहीं तोड़ सकते, है ना। रात को तोड़ने के लिए आपको उसको FD तोड़ना भी है, तो उसके लिए भी आपको बैंक में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्लॉज है, फिर उसके कुछ टर्म्स है, और उसके बाद आपको चार्जेस भी लग सकते हैं अगर आप उसके कंप्लीट होने के पहले तोड़ते हो। बट ऐसा सेविंग अकाउंट में नहीं है, कभी भी कर सकते हो, कभी भी डिमांड कर सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी इज दिस। दूसरा होता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो है जनरली बोरिंग्स फ्रॉम RBI होती है और बोरिंग्स फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती है, OMO, ठीक है। अल्टीमेटली ओपन मार्केट ऑपरेशन में ही RBI से बोरिंग होती है, बट मैं दोनों को सेपरेट रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो देयर इज अ मार्केट, इंटर मार्केट, जिसको मनी मार्केट भी बोला जाता है। तो मनी मार्केट में बेसिकली होता यह है कि मनी मार्केट में जो बैंक्स होते हैं, उनको जो शॉर्ट टर्म की जो नीड्स हैं उसके लिए वो बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उनको इंटर बैंक बोरो करना है तो वो मार्केट के थ्रू बोरो कर सकते हैं, और अगर उनको RBI से बोरो करना है तो वो RBI से स्पेसिफिकली बोरो कर सकते हैं। तो ये लाइबिलिटी के हिस्से में चलेंगे भाई। ये दोनों चीजें बेसिकली कॉल्ड होता है लाइबिलिटी। अब इसके बाद इसमें और भी टर्म्स होंगी, उसको मैं डिटेल अभी फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका बहुत जरूरत नहीं है। तो असेट्स, असेट्स में आपको बेसिकली असेट्स कौन सी होने वाली हैं आपके हिसाब से? असेट्स क्या होंगी बैंकों के लिए? सोच के बताइए। अरे लॉजिकली सोचा करो भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लेना है अपने को इसमें से। असेट्स मतलब जो लोन एंड एडवांसेस दिए जाते हैं वो, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस। इसमें ज्यादातर आप डिफाइन कर सकते हैं, एक कॉर्पोरेट लोन्स होता है और एक होता है रिटेल लोन्स, ठीक है। कॉर्पोरेट लोन्स में जनरली ये एक वर्किंग कैपिटल लोन होता है और एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन मतलब जो लंबे समय के लिए। रिटेल लोन तो आपको पता ही है कितने प्रकार के होते हैं, होम लोन, कार लोन, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लोन, पर्सनल लोन के बाद एजुकेशन लोन, जमाने भर का। दोनों में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। कॉर्पोरेट लोन का मतलब हुआ सिंपल सेंटेंस में जो कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है। रिटेल लोन का मतलब हुआ जो केवल रिटेल लोगों को ही दिया जाता है, जो स्पेसिफिकली हम जैसे इंडिविजुअल्स को लोन दिया जाता है। तो अगर आप ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे, रिटेल लोन और कॉर्पोरेट लोन दोनों ही इनकी असेट्स हैं, ठीक है। ये असेट्स होती हैं, और ये अगर अच्छे से दिए गए तो सिस्टम अच्छा चलता है, और अगर ये खराब हुए तो यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम्स, जो कि आपने देखा होगा कि हमने 2-3 सालों में फेस किए। थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम्स इंप्रूव हुआ है,
बट अभी भी जो एनपीए क्राइसिस है वो बड़ा नहीं है। एनपीए यहीं से समझ आता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो जो असेट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इसलिए वो नॉन परफॉर्मिंग। तो असेट्स मतलब लोन जो दिए हैं वो रीपेमेंट नहीं हो रहा है, मैंने आपको पैसा दिया, आप पैसा देना बंद कर दोगे मेरे को, तो ये नॉन परफॉर्मिंग का काम हो जाएगा मुझे। और अगर आप बिल्कुल ही मना कर दोगे कि देता ही नहीं जाओ, मान लिया जैसे, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं बैड डेट्स के अंदर में। तो ये आगे की स्टेजेस हैं। तो फिलहाल हमें लोन एंड एडवांसेस वाला सेक्शन पे नहीं बात करनी है, वी नीड टू फोकस ओनली ऑन लाइबिलिटी सेक्शन। इससे ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई जो है वो यहीं से कंट्रोल करती है। जो पैसा आपको पास आ रहा है उसको कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि जो देना है, जिससे लोन को देना है, वो उसी हिसाब से क्लियर होता चला जाएगा। तो अब मैं आपको एक स्पेसिफिकली एक टर्म्स बताते चल रहा हूं, और वो टर्म्स के बेसिस पे अपने को चलेंगे, ठीक है। अब जो पूरा सिस्टम है बैंकिंग का, वो कैसे वर्क करता है, हाउ द सिस्टम वर्क्स, और कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता घटता है, वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये असेट वाला सेक्शन जो है, इसको मैं मिटा के यहां पर मैं आपके लिए एक चार्ट बना देता हूं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, वो बेसिकली दो वेज में डिफाइंड है भाई, दो तरीकों से डिफाइंड है। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा दो तरीके बनाए हैं। एक है डायरेक्ट फ्लो कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल करने का मतलब है फ्लो को सीधा कंट्रोल करना है, डायरेक्ट कंट्रोल्ड। और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए बेसिकली अगर आप देखेंगे दो तरीके हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल करने के भी दो तरीके हैं। सो डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है, सीधे सीधे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के थ्रू, ठीक है। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है, रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी रेट्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होता है, रिवर्स रेपो, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल होता है, पॉलिसी रेट्स के थ्रू। तो ये पॉलिसी रेट्स है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो। आप हर बार ज्यादातर रेपो रेपो करके बार बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो बेसिकली उसी का ही ये अंडरस्टैंडिंग है, उसी का ही मेन हमको समझना है, डिफरेंस है। अब इन चार का क्या मतलब है, डायरेक्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट क्या हुआ, ये अपन एक करके हम लोग बात करेंगे, और यही आपको समझना है अल्टीमेटली कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो पहले अपन शुरू करते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। ये हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर का ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो काफी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत किए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री है वो हाईली हाईली जो है वो डिपेंडेंट है। इंडिया का जो बेसिक पॉपुलेशन है वो हाईली बैंकिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। और अगर बैंकिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि आप ये लगभग समझते हुए चलिए कि जब बैंकों पे पूरी कंट्री डिपेंडेंट है, तो बैंकों को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसको थोड़ा स्ट्रांग और कंजर्वेटिव बनाया। इतना सिंपल सी बात है आपको समझने के लिए कि भाई हमारा जो इकोनॉमी है वो बेसिकली अभी भी बहुत हद तक फाइनेंशियली इतना एजुकेटेड और लिटरेट नहीं हुआ। हम अभी भी ज्यादातर पैसा जो है वो अपना काय पे डिपॉजिट रखते हैं, बैंकों में रखते हैं। इस कारण से बैंकों पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर बैंक बहुत सिंपल हो गए और बैंक बहुत एग्रेसिव हो गए और बहुत एक्शन में चलने लगे, तो आप मान के चलिएगा कि प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या होता है कि हमें हर हालत में इनको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए वी नीड बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई क्या क्या तरीके से इसको मेजर किया जा सके, स्ट्रांगली बनाया जा सके। तो वही यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम में ये बताया गया कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट रखा जाए कि बैंकों के डिफॉल्ट होने की पॉसिबिलिटीज ना हो। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि 2-4 बैंक ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम हुआ, बट वो प्रॉब्लम होने के बहुत पहले आरबीआई को पता चल गया, और उसका प्रॉब्लम ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। अब पंजाब एंड जो बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, पीएनबी जो बैंक था, वो बैंक में प्रॉब्लम थोड़ा लंबा चला गया, क्योंकि वो
पूरे तरीके से कमर्शियल नहीं था, तो इसलिए पूरा कंट्रोल्ड आरबीआई के थ्रू नहीं था। ठीक है, तो अगर आप बाकी बैंकों में देखेंगे, कई बैंकों को जैसे यश बैंक का प्रॉब्लम था, तो आरबीआई ने बहुत पहले भाप लिया, विद इन अ 4-5 मंथ वापस वो रीस्टैब्लिश हो गया और अभी देखो वापस फिर से फ्लो में चल रहा है। तो ये हमारे सिस्टम की बहुत एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं भाई, अगर आप एग्रेसिव नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, तो प्रॉब्लम तो होना ही है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो जो हमेशा से रहने ही वाली है। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि आरबीआई का कंट्रोल हमारे यहाँ ज्यादा है और वो जरूरी है, हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन करेंगे। और इसको जस्टिफाइड करने के लिए, वैसे तो मैं कोई इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, बट जो भी मैं पढ़ता हूं, जहां पर भी जितना भी पढ़ता हूं, उसमें मुझे इतना ही समझ आता है कि ये जस्टिफाइड है। ठीक है, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, कई बार दिमाग भी खराब होगा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्यों रखा हुआ है फालतू में, क्यों उसको अपन किया। तो फिर भी आपको समझना है कि सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर सेंटीमेंट पे वर्क नहीं करता है, सिस्टम वर्क करते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे। तो वही यहाँ पर हमें ये बात क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, सो सीआरआर बेसिकली क्या है उसके बारे में समझते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है वो देखते हैं। सो होता ये है कि कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि बैंकों को कंपलसरी जो डिपॉजिट्स वो लेते हैं, उन डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास ऑलरेडी सेव करके रखना होता है, ताकि जो डिपॉजिट्स लिए हैं वो डिपॉजिट्स का खतरा ना पड़े, डिपॉजिट्स की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो डिपॉजिट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या करके रखा है कि एक नाम दिया हुआ है टीडीएल। ठीक है, तो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी जो हमने दिया है, तो सीआरआर जो होता है बेसिकली, वो बेसिकली टीडीएल, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का एक परसेंट होता है। ठीक है, कितना परसेंट है अभी फिलहाल मैं एक फ्लक्चुएटिंग नंबर लिख रहा हूं, इन्फ्लेटेड नंबर लिख रहा हूं, उसके बाद में आपको आरबीआई की वेबसाइट में एक्चुअल नंबर भी देखेंगे, तो आप वो नंबर रिप्लेस करके यू कैन ट्राई एंड आइडेंटिफाई। सो मान के चलिए किसी भी बैंकों के पास टोटल 100 रुपए का टीडीएल आया, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी 100 रुपए की आई मान के चलिए। ठीक है, तो सीआरआर मैंने अज्यूम किया कि वो 5%, एक्चुअली काफी कम हो गया है अभी, और एसएलआर भी काफी कम हो गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं 25% है। ठीक है, तो सीआरआर मतलब 5% जो है, तो आरबीआई को का कहना है कि भाई 100 रुपए का जो डिपॉजिट आपने लिया है, उस 100 रुपए के डिपॉजिट में से पहले कंपलसरी 5 रुपीज निकालिए सीआरआर के नाम पे और अलग कर दीजिए उसको। ठीक है, उसको अलग करके रख देना है अपने को। तो 100 रुपए में से 5 रुपए निकाला और 95 रुपए बचे। अलग करना मतलब आपने अपनी 100 रुपए की इनकम को 5 रुपए ले जाके आपने अपने गुल्लक में डाल दिया। अब वो गुल्लक के पैसे बढ़ने वाले क्या? नहीं बढ़ने वाले। उस पर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला क्या? नहीं मिलने वाला। वो सीधा सीधा क्या रहेंगे? 5 रुपए के 5 ही रुपए रहने वाले। तो सीआरआर मतलब ये। अब वो 5 रुपए क्यों रखे थे भैया? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई, तो फ्यूचर में कुछ कंटेंजेंसीज हुई, तो अपन वो 5 रुपए का इस्तेमाल तो कर सकेंगे ना अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। इसके बाद कंपलसरी बैंकों को यही डिपॉजिट का 25% मान के चलिए, अगर एसएलआर है तो 25%, 100 रुपए का 25 रुपए, ठीक है, एसएलआर के तौर पे करना पड़ता है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका मीनिंग होगा कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टमेंट हर बैंक को करना पड़ता है। हमारे देश में यहां पर एसएलआर का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जनरली एसएलआर को जब आप सर्च करेंगे तो उसमें कोई भी स्टेबल सिक्योरिटीज आ सकती है और कमोडिटीज भी आ सकती है। तो समटाइम एसएलआर आपको मिलेगा 25% इन टर्म्स ऑफ जो एसएलआर में आपको सम टाइम मिलेगा, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, और भी कोई सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे केवल और केवल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे गवर्नमेंट ने जितने भी सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड इशू किए, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ होते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होते, खर्च नहीं हो सकते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट की सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर। तो 25% मान के चलिए गवर्नमेंट की सोवरेनिटी पे हमने खर्च किया। सो 25% जो ब्रॉडली आपके पास है वो आपको इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब वो 25 रुपए भी आपके सेफ है, सीधी सी बात है। तो 100 में से 25 रुपए भी अपन ने क्या किए?
गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दिए। उसके बदले में अपने को क्या मिला? उसके बदले में अपने को मिला एक सिक्योरिटी, एक बॉन्ड, एक पेपर मिला। ठीक है, तो वो जो पेपर है, सिक्योरिटी है, वो बेसिकली हमारा एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जब आपने क्या किया, ये 25 रुपए को ऐसे समझो, अपन ने 5 रुपए अपने गुल्लक में डाल लिए, कैश के तौर पे रख लिए, 25 रुपए ले जाके हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो 5 में कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, बट 25 में सेविंग अकाउंट का तो रिटर्न मिलेगा ना। तो 25 हमने रखे हुए हैं अपने पास सेविंग अकाउंट में, तो 25 में आपको कुछ भी मिलेगा। वैसे ही बैंक जब इन्वेस्ट करती है तो कुछ भी मिलता है, बट मिलता है कुछ ना कुछ तो उसमें हमेशा मिलता है। तो वो 25 रुपए आपको 25 जो होंगे SLR के तौर पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद माइनस करने के बाद यहां बचते हैं 70 रुपए। तो 70 रुपए को कहा जाता है NTDL, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी। ये 70 रुपए बैंकों के पास सब बचे हैं। अब ये 70 रुपए में भी कुछ क्लॉजेज हैं जो शेड्यूल्ड बैंक को, कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। अब 70 रुपए जो है, आपको लगेगा कि सर 100 रुपए मैंने जब लिया आपसे, मतलब कस्टमर से मैंने जो बोरो किया था मनी, तो वो तो मेरे लिए कॉस्ट है ना। 100 रुपए बहुत बड़ा कॉस्ट है। आपको एक तो इंटरेस्ट भी पे करना है अगर आप सेविंग में डिपॉजिट कर रहे हो, दूसरा जो कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया, आप एक बैंक खोलोगे, ब्रांच खोलोगे, उसमें एम्प्लॉय बैठाओगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब जमाने भर के उसमें एक्सपेंसेस होंगे, काफी सारी चीजें होंगी, उसकी भी कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट में मुझे 30 रुपए तो मैंने पहले ही अलग कर दिए। जब 30 रुपए अलग कर दिए, मतलब 70 ही बचे, तो 70 रुपए तो मैं दूसरों को दे पाऊंगा ना। अपन भाई काम क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं दूसरे को, तो देंगे तो अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो अपना कुछ तो प्रॉफिट होगा। बट यहां पर 70 भी बचते नहीं है। 70 में भी एज पर द रूल 40% जो होता है वो PSL में जाता है। PSL इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो जो भी NTDL है उसका 40%, लगभग 28 रुपीस जो है वो PSL में जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाएगा। और इसके बाद जो रिमेनिंग है वो बैंक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 70 में से 28 चला गया, 28 के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो बचता हुआ है लेट्स से 42। तो 42 रिमेनिंग है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? तो भाई कैसा है, कुछ सेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बहुत मैच्योर और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने RBI को बताया हुआ है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर PSL के अंदर में आता है, MSME के कुछ सेक्टर्स हैं वो PSL में आते हैं, जो भी कोई फिशरी या कोई भी ऐसा लेके एक्टिविटी करता है छोटा मोटा, वो प्रायोरिटी सेक्टर पे आता है। कुछ पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। तो 28 रुपीज 70 रुपए में से जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करने का मतलब है उनको लोन देना है। तो 70 में से 28 रुपए आपका लोन कहाँ जाने वाला है? प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऊपर पे उनको लैंड करना है। उसके बाद जो बचे हुए 42 बचे हैं, तो देखो 100 में से अब केवल 42 बचा हुआ है, वो 42 आपको किसी को भी इन्वेस्ट करना है। कहीं पे भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, कितने भी रेट पे दो, वो जो डिसाइडेड है फिर उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली द इंटायर सिस्टम। अब इससे RBI कैसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन, ये देखिए आप। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल कैसे है, सीधा सा हिसाब है। अगर मैंने CRR का रेट 5% से 6% पे कर दिया तो क्या होगा? बेसिकली मेरे पास फाइनली जाके 70 रुपए की जगह 69 ही बचेंगे। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास जो लैंड करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ मनी सिस्टम में कम हो गया। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI क्या करता है? ये रेट्स को बढ़ा देता है। रेट्स बढ़ाने से फ्लो ऑफ मनी कम होता है। फ्लो ऑफ मनी कम होने का मतलब उसका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ गया इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया। ठीक है, उल्टा भी होता है। अभी जैसे पिछले प्रॉब्लम में चल रहे हैं हम लोग 2 साल से कम 3 साल से प्रॉब्लम में ही है, और खासकर पिछले 9 महीनों में तो हमने देखा कि प्रॉब्लम में है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो CRR है SLR है वो तो बराबर है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं, तो वो प्रॉब्लम मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बट अभी RBI क्या कर रहा था, जब प्रॉब्लम में थे 1-1.5 साल पहले हमारे पास, तो सिस्टम में लिक्विडिटी कम दिख रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे
जो बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स, बड़े बैंक, छोटे बड़े बैंक के बाद कुछ एनबीएफसी जो हैं, उनमें एक बेसिकली एक प्रॉब्लम हो गया था कि कई प्रोजेक्ट्स उनके अटक गए थे, इसलिए फंड का क्राइसिस था। तो वो फंड क्राइसिस को बोलते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी मतलब सिस्टम में पैसा नहीं है, तो उसको पैसे को वापस लाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर कम कर दिया। अब अगर सीआरआर 5% से 4% हो गया, या एसएलआर 25% से 22% हो गया, 20% हो गया, मतलब इतना एक्स्ट्रा मनी वापस मार्केट में उतर जाने वाला है, सर्कुलेट हो जाएगा। तो इतना मनी आपके पास सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, मनी फ्लो ऑफ मनी जो है वो बढ़ेगा। बढ़ने से डायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़े ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो बढ़ती है, बट स्पेसिफिकली फ्लो ऑफ मनी आ गया, इसका मतलब बैंकों के पास आसानी से पैसा अवेलेबल है, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे सकते हैं। अगर वो फ्लो टाइट चल रहा है, लिक्विडिटी टाइट चल रहा है, तो उनके पास पैसा कम है, और पैसा कम है इसका मतलब वो कम से कम लोगों को ही लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे। तो ये बेसिक सिस्टम फॉलो किया जाता है डायरेक्ट कंट्रोल में। इसको डायरेक्ट इसलिए बोला गया कि सीधे पैसे पे हिट पड़ता है। अगर सीआरआर कम किया, इसका मतलब यह है कि फ्लो बढ़ गया, सीआरआर बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि फ्लो टाइट हो गया। सिंपल सी बात है, आपको अगर जो भी आपका सिस्टम है उसको अगर आपको टाइट करना है, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दो। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ाते जाओगे, उतना कम हमारे पास रेट, उतना कम वैल्यू हमारे पास अवेलेबल रहेगा। और जितना आप इंटरेस्ट रेट इजी करोगे, कम करोगे, उतना ही बेसिकली वो सिस्टम में पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, और इसी तरह से वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज और चेंज और डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ब्रॉडली अगर आप समझें कि सीआरआर एसएलआर का मेन पर्पस हमने समझ लिया, अब हम आते हैं रेपो और रिवर्स रेपो की तरफ कि ये कैसे होता है, ये इनडायरेक्टली कैसे इसको नाम दिया गया है, ठीक है। बट अभी तक जितना बताया वो समझ आया कि नहीं भाई, बताओ यस और नो। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। आपने देख लिया कि आरबीआई कितना सख्त है डिपॉजिट को लेते हुए, तो डिपॉजिट के लिए इतना लफड़ा होता है और इतनी प्रॉब्लम, और डिपॉजिट कलेक्ट करने में भी ना उनकी जान निकल जाती है, क्योंकि भाई एक खाता खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है वो इतनी टीडियस और इतनी इतनी स्ट्रांग और इतनी डिफिकल्ट है कि किसी भी हालत में बैंक जो चाहता है कि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा ना जाएं, पर फिर भी ये आरबीआई का रूल है कि भाई आपको उस हिसाब से ही मेंटेन करना है, उस हिसाब से ही मैनेज करना है, तो इसलिए वो चीजें कंपलसरी रखनी पड़ती है। तो अब क्या करते हैं बेसिकली, आरबीआई जब जो बैंक्स है वो अगर डिपॉजिट नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इन अ ब्रॉडर सेंस रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू बोरोइंग्स की जाती है, बोरोइंग्स की जाती है, एक्स्ट्रा मनी पास किया जाता है, तो रेपो के थ्रू बोरोइंग की जाती है। तो रेपो में होता कैसे है कि रेपो बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिससे आरबीआई के थ्रू, आरबीआई से बैंक बोरो करते हैं, ठीक है। सो बैंकों को अगर बोरो करना है, आरबीआई से पैसा लेना है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली लेंडर्स, लेंडर टू दी रिजॉर्ट बोला जाता है, फाइनल लेंडर बोलते हैं, ठीक है, लेंडर टू दी लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है आरबीआई। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक है, बैंक का काम लोन देना नहीं है, बट इनको मैनेज करना, बट अल्टीमेटली इनके पास पैसा बहुत होता है, तो पैसा है, लिक्विडिटी है, तो वो रेपो के थ्रू आप आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको शॉर्ट टर्म की नीड्स के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तब ऐसे सिचुएशन में आप आरबीआई से पैसे उधार ले लो। अब अगर आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, किसी भी वैल्यू जिसका टेन्योर 1 साल से कम है, उससे अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो आप रेपो के थ्रू उनसे बारो कर सकते हैं। अब रेपो रेट जो बेसिकली होता है वो प्योरली डिफाइंड है कि आप किसने अपने पास सिक्योरिटीज परचेज करके रखे हैं, आपको कितना लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो रेपो में होता यह है कि हमें एज अ बैंक वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी सिक्योरिटीज अवेलेबल विद देम। तो सिक्योरिटीज अवेलेबल कहां से होती है, तो आप अगर जो परचेज करते हैं सिक्योरिटीज, वो पर सिक्योरिटीज को दोबारा डिपॉजिट करके हम आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। तो क्या होता है आप समझिए जरा, इसका फुल फॉर्म है रेपो का,
रेपो को बोला जाता है रीपर्चेज ऑप्शन। RE मतलब री, P मतलब परचेस एंड ऑप्शन। सो रीपर्चेज ऑप्शन मतलब एक प्रकार का ऑप्शन है जिसमें आरबीआई वापस रीपर्चेस करने की एक प्रॉमिस देती है रेपो में, ठीक है। तो हमारे जो बैंक है, आप अपने आप को बैंक कंसीडर करते हुए चलिए, बैंक क्या करेगा, अपनी जो सिक्योरिटीज उसने परचेस करके रखा है उसको गिरवी रख के, उसको डिपॉजिट करके आरबीआई से उतनी बोरो कर सकता है। ये इसलिए ऐसी लिमिट है कि भैया ऐसा ना हो नहीं तो कि यार बैंक क्या करने लगे, अनलिमिटेड बोरोइंग करने लगे, तो आप बोरो उतना ही कर पाओगे जितना आपकी बस सिक्योरिटीज है, नहीं तो मतलब ही नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा कि बैंक क्या बोलेगा, अरे काय को जबरदस्ती डिपॉजिट लेना पब्लिक से, छोड़ दो, भूल जाओ, हम सीधे आरबीआई से बोरो करेंगे और अपना पैसा रोल करते रहेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं सिस्टम में सारे प्रकार के तामझाम करने पड़ते हैं। तो रेपो का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में मुझे पैसों की जरूरत है। अभी आपको कोई बहुत बड़ा पेमेंट आया, कोई जैसे सपोज मान के चलिए कि एक बड़ा लोन का ऑर्डर मिला, आपको कोई लोन मिलने वाला है। अब वो लोन 700-800 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन है। तो कोई भी स्पेसिफिक जो एरिया होता है उसमें इतनी बड़ी ब्रांच होती नहीं है कि इसमें इतना पैसा हो। तो ये बड़े लोन्स को मैनेज करने के लिए क्या होता है, आप तुरंत ओवरनाइट तुरंत आरबीआई से बोरो कर लो, बट ये प्लान्ड है। हाँ, ये थोड़ा प्लान्ड है, जैसे 10 दिन के बाद जरूरत पड़ने वाली है और कुछ दिनों की जरूरत पड़ी है तो अपन आरबीआई से अपन बोरो कर सकते हैं, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। इसी में ही एक नाम और है एमएसएफ का, तो रेपो एंड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रेपो आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओनली डिफरेंस बिटवीन एमएसएफ एंड रेपो इज अंडर रेपो आप शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं, प्लान्ड होता है, ठीक है, बट एमएसएफ इज ओवरनाइट। अभी रात को ही जरूरत पड़ गई मेरे को, क्योंकि मार्केट तो चलता रहता है, रिक्वायरमेंट चलती रहती है, तो कोई बहुत बड़ा आपके पास डेफिशिएंसी हो गया लोन पैसों का और आपको तुरंत पैसे चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, तो ओवरनाइट फैसिलिटीज होती है, रात को भी आप उठा के पैसे बोरो करके अपने सिस्टम पे डाल लो, सिस्टम पे डाल के फिर वो उतना सर्कुलेट हो जाता है। तो ये एमएसएफ के तौर पे कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बट यहां पर भी आप उतना ही बोरो कर सकते हैं जितनी हमारे पास कैपेसिटी है, लिमिट है जो दी गई है, प्रिस्क्राइब्ड है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये रेपो रेट है। अब ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम बैंक है, कुछ बैंक जैसे पब्लिक बैंक में एसबीआई बोल लीजिए या कुछ बैंक लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बोल लीजिए, उनका तो आपको मिलेगा कि काफी ह्यूज पब्लिक से डिपॉजिट मिलता है। बट ज्यादातर बैंक जो हैं वो पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है वो बेसिकली इनडायरेक्ट के थ्रू ही मैनेज करके रखते हैं भाई। इनडायरेक्ट के थ्रू मैनेज करने का मतलब ये है कि हर हालत में जो इंटायर स्ट्रक्चर है उनका, वो पूरा का पूरा किस बात पे वर्क करता है कि बोरो कर लो और बोरो करके जब भी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है रेपो का। अब रिवर्स रेपो क्या होता है, जो उल्टा है। अब कई बार क्या होता है, बैंकों के पास सरप्लस मनी है, तो सरप्लस मनी है तो आरबीआई कोई पैसे थोड़ा छापते बैठा है, तो आरबीआई तो बीच में बैठा है एक ब्रोकर के तरह। तो जिसके पास सरप्लस मनी है उसने पास कर दिया आरबीआई को, और जिसके पास रिक्वायरमेंट है उसने आरबीआई से ले लिया। तो आरबीआई क्या करता है, बीच में बैठ के ये कार्यक्रम करता रहता है। तो रिवर्स रेपो इज नथिंग बट जिस रेट, जिस जिस इज अ रेट विच इज आरबीआई जो है बैंकों को इंटरेस्ट पे करता है, रेपो में इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो रेपो में होता क्या है कि इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, क्यों दे रहा है, क्योंकि उन्होंने बोरो किया है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि सरप्लस मनी है वो पार्क किया हुआ है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए थे, मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, मेरे पास 150 है, तो 50 रुपए मेरे को अभी जरूरत नहीं है 15 दिन के लिए, तो ये 50 रुपए मैंने डाल दिया, तो उसका कुछ बेनिफिट होना, क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ मनी बहुत खतरनाक है। आप पैसों को ऐसा रखेंगे ना, आइडियल नहीं रख सकते पैसों को। हम लोग तो छोटे मोटे अपन लोग हैं जो भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपने पास थोड़ा बहुत ही पैसा होता है, उसलिए अपने को इतनी बात नहीं है। बट जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होता है ना, वो ऐसा मनी आइडियल नहीं रख सकते बैंक में या पैसों लॉकर में बंद करके, वो पैसे की वैल्यू बहुत खराब होती है। तो रिवर्स रेपो में वही होता है कि भाई एक्स्ट्रा मनी है, दे दो आरबीआई को, आरबीआई ने ले लिया, उसको रख लिया। तो इस तरीके से सिस्टम कंट्रोल होता है। आप बार बार देखते होंगे कि रेपो रेट कम हुआ, रेपो रेट ज्यादा हुआ, इससे आपकी बैंकों की ईएमआई कम हो गई या ज्यादा हो गई, ये बार बार हमको बताया जाता है। तो उसका मतलब क्या है वो समझिए आप। आरबीआई क्या करता है बेसिकली, जब रेपो रेट कम करेगा,
कम करेगा मतलब पहले मान के चलिए इनिशियल तो 8-8% पे होती थी, अभी तो 4-4.5% पे आ चुकी है, ठीक है। तो 4-4.5% पे आ गई, तो पहले आपको आरबीआई से बोरो करने में 8% देना पड़ता था, अब वही चीज 4.5% पे अगर मिल रही है, 4.25% पे मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 4-4.25% पे अगर आपको मिल रहा है, तो मतलब ये हो गया कि आपकी कॉस्ट, बैंकों की कॉस्ट खरीदने की, लोन लेने की कॉस्ट कम हो गई। तो जब उनकी कम हो गई तो अल्टीमेटली वो कस्टमर को कम रेट पे देंगे, कम रेट पे देंगे तो उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अभी इंडिया में अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है, काफी लोएस्ट, मतलब हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट रेट चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट आप रेपो देखेंगे तो 4-4.25% है, और बैंकों का होम लोन जो है वो एज लो एज 6.97% पे मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली 4-5 साल पहले क्लोज टू 9% था। मतलब कहीं मत जाइए, 4-5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने घर लिया, मैंने 8.9% मतलब 9% पे लिया। एक समय ऐसा भी था कि जब 10% के ऊपर भी निकल चुका था रेट। तो होम लोन अगर 7% पे मिल रहा है, दिस इज रियली रियली अमेजिंग। और वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि रेपो जो है वो लो लेवल पे है, ठीक है ना। तो आरबीआई से जो बोरोइंग की जो है इनकी कैपेसिटी वो लो है, तो रीपर्चेज ऑप्शन जो होंगे, है ना। अब इसी में ही रेपो में एक और नाम होता है बैंक रेट। तो जनरली रेपो और बैंक रेट इज नॉर्मली सिमिलर। रेपो मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बोरो कर रहे हैं, और बैंक रेट मतलब जो थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं, जो थोड़ा स्टेबल होती है। बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये जो दोनों चीजें हैं ये डिसाइडेड होती हैं आरबीआई के थ्रू। आरबीआई डिक्लेयर करता है कि भाई कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। अब फाइनली आपने ये समझ लिया कि पूरा पॉलिसी रेट क्या होगा, कैसे होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे कंट्रोल्ड होगा, रेपो क्या होगा, कैसे रिवर्स रेपो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली ये समझने में कैपेबल है कि अगर सिस्टम में पैसा है, मनी है, फ्लो है, तो उस फ्लो को कंट्रोल करके आरबीआई फाइनली इन्फ्लेशन में कैसे उसको इंक्लूड कर सकती है। जनरली आपने देखा होगा कि सर इतना इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया? तो इंटरेस्ट रेट इसलिए कम किया क्योंकि बैंक, आरबीआई का काम दोनों को मैनेज करना होता है, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ का पल्ला जो है वो नीचे झुक जाने वाला है, और ज्यादा ग्रोथ है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे चले जाती है। तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल की जाए तो ग्रोथ होती है। अब कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, अपन ने देखा 1 क्वार्टर हो गया, 2 क्वार्टर हो गया, इन्फ्लेशन अच्छा रेट लो लेवल पे, जो कि आपने पिछले 5-6 सालों में देखा। अभी कोरोना के टाइम पे ही इन्फ्लेशन बढ़ा, उसका भी मैं रीजन अभी समझाता हूँ। तो 4-5 सालों में जो इन्फ्लेशन कम हुआ उसका भी कई सारे रीजन थे, उसमें से कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी थी और कुछ मार्केट के जो सिनारियोज थे उसके कारण भी था। तो इन्फ्लेशन यदि कम है तो आरबीआई के पास स्कोप है कि इंटरेस्ट रेट वो कम करके रखे। इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया जाता है? ताकि बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो। बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंक क्या करेगा, आसानी से आपको लोन देगा। अगर आपको लोन आसानी से मिलेगा, अभी जैसे आपको घर खरीदना है और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बैंक फिर आपको बहुत मुश्किल से लोन देगा। बट अभी अगर आपको घर खरीदना जाइए, आपके पास कुछ 2-4-5 डॉक्यूमेंट कम ज्यादा भी होंगे ना, तो भी आपको लोन मिल जाएगा, और ऊपर से कम रेट पे मिलेगा। तो जब कम रेट पे मिलेगा तो हम कहाँ 9% पे ले रहे थे अभी 1-1.5-2 साल पहले ही, और अभी 7% पे मिल रहा है। ह्यूज डिफरेंस है 2% का। तो आप क्या करोगे, लोन ले लोगे। मतलब डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट को लेके, डिमांड होना चाहिए। तो डिमांड अगर रहा सिस्टम में तो एक रोटेशन होगा, डिमांड हुआ, मैंने लोन लिया, लोन लेके क्या हुआ, लोन लेने से जिस भी प्रोडक्ट को मैंने परचेस किया उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी तो जो उसको बना रहा था उसकी वैल्यू बढ़ी, उसका पैसा, उसके प्रॉफिट बढ़ा, उसका प्रॉफिट बढ़ा तो उसने और लोगों को काम दिया और इंडस्ट्रीज को डाला, उसने और लोगों को काम दिया तो और लोगों के पास पैसा आया, जितने लोगों के पास पैसा आया उतने लोग फिर वो और खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो ये और डिमांड का साइकिल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ये पॉजिटिवली मूव होता चला जाएगा। बट यदि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है सिस्टम में तो आरबीआई क्या करेगा, रेट्स को कंट्रोल कर देगा। जैसे हमने देखा था कि 2008-9 के बाद हो रहा था, तो रेट कंट्रोल करेगा, बहुत एकदम स्ट्रिंजेंट रेट कर देने वाले। जब स्ट्रिंजेंट रेट होगा तो क्या होगा, सिस्टम में अगर ज्यादा रेट, स्ट्रॉन्ग रेट है तो बैंक फिर लोन देने के लिए कतराएगा,
हर किसी को लोन नहीं देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसकी कैपेबिलिटी उसको ही लोन दिया जाएगा। जब उसको लोन मिलेगा तो सीधी सी बात है कि भाई हर किसी को लोन नहीं मिल रहा, मतलब डिमांड कम हो गया प्रोडक्ट का, डिमांड कम हो गया तो जो मैन्युफैक्चरर था वो एकदम स्लो डाउन में चला गया, वो उसमें चला गया कि भाई अब कैसे भी करके बचाना है, अपने आप को सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने में वो खर्चे कम करेगा, मतलब नए लोगों को रोजगार देने की जगह वो एग्जिस्टिंग लोगों को भी निकालने लगेगा। जैसे लोग निकलना चालू होंगे, उनकी जॉब भी गई, और जो एग्जिस्टिंग जॉब में बच्चे उन्होंने भी खर्चा करना बंद कर दिया। जब उन्होंने भी खर्चा कम करना बंद कर दिया तो इंटायर डिमांड साइकिल टूट गया, लोग प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहे। जब प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई साइकिल ब्रेक हुआ और ग्रोथ सिस्टम का चला गया। अब कोरोना के वजह से क्या हुआ था उस बात को समझिए, और इतने दिनों में आरबीआई ने कैसे मेजरली मैनेजमेंट किया है वो भी आपको समझना पड़ेगा। बट फिलहाल यहां तक क्लियर हुआ अभी आपको मैंने जो बताया, बताइए। ठीक है, सो ब्रॉडली अगर आप समझने की कोशिश करें, दी 2016-17 के बाद हमने बहुत सारे क्राइसिस, हमारा बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आया, जिसमें से एनपीए जो था वो बेसिकली एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला जो था इशू वो क्रिएट हुआ, और उसके चक्कर में अगर आप देखेंगे काफी हद तक इंडिया में प्रॉब्लम हुआ। तो ब्रॉडली अगर आप देखें एनपीए क्राइसिस में हमारे पास बहुत सारे एसेट्स जो थे, लोन्स जो थे वो हमने जो लोन दिए थे वो डिफॉल्ट होना चालू हो गए और लिक्विडिटी का एक क्राइसिस हुआ। तो आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम करना चालू किया ताकि लोगों के पास कॉन्फिडेंस रहे, और लोगों के पास कॉन्फिडेंस रहने के बाद अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो लोन दिया जा सके। अब हुआ ये कि इंटरेस्ट रेट हम लोग पिछले 2 सालों से कम कर रहे थे, और सडनली 2020 मार्च में वी हैव सीन द क्राइसिस ऑफ पैंडेमिक, यू कैन से। और वो पैंडेमिक आया जिसके कारण बड़ा इशू ये क्रिएट हो गया कि ये पैंडेमिक में एक डिमांड को, जो कॉन्फिडेंस होता है डिमांड का, वो डिमांड का बेसिकली बहुत बड़ा एक एफर्ट जो था आरबीआई का वो बहुत हिट किया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ता है, द फ्लो ऑफ मनी बढ़ता है, और अगर वो कंज्यूम नहीं किया जाए तो कंजम्पशन नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा कि कंजम्पशन नहीं करने का नुकसान होगा कि वो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस कर देगा। तो वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस होना चालू हुआ। तो पिछले 7-8 महीनों में अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से रेट कम हुए, फ्लो ऑफ मनी बढ़ाया गया, वो फ्लो ऑफ मनी अल्टीमेटली फ्रूटफुल नहीं हुआ ब्रॉडली, फ्रूटफुल नहीं हुआ ब्रॉडली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि उतना डिमांड क्रिएट हो सके। तो उतना डिमांड अगर क्रिएट नहीं हो पाया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो इन्फ्लेशन को कन्वर्ट कर रहा। तो इसीलिए 77 मंथ, मतलब लगभग लगभग मोदी जी के ज्वाइन करने के बाद की ये सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का पीरियड हमने देखा सितंबर अक्टूबर में। अराउंड 7.5 टू 8.5 के बीच में ऐसा कोई नंबर था कि इन्फ्लेशन बढ़ा। बट क्या उससे डरना चाहिए? तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत टेम्पररी है। इतनी गवर्नमेंट की, इतना यहाँ पर हमारे सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो सिस्टम इसको डेफिनेटली उसको कैप्चर कर पाएगा। तो कैप्चर करने के बाद ऑन अ ब्रॉडर स्केल, लार्जर स्केल, वो उसको इंडिया को उसमें से बेनिफिट ही निकल के आने वाला है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आरबीआई का जो इंटायर स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके पे बनता है कि भाई जरूरत पड़ने पे वो अपन मोल्ड करें, और जरूरत पड़ने पे उसको मतलब स्ट्रांगली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए, और यही चीज आरबीआई अभी तक करते आया है। जब जब जरूरत पड़ी है आरबीआई के रेगुलेशंस बहुत बहुत स्ट्रांगली काम पड़े हैं, और जिस कारण से काफी बेनिफिट्स देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। अभी भी आप देखेंगे आरबीआई पूरी पुरजोर कोशिश में है कि कैसे भी कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, इसलिए इंटरेस्ट रेट को लगभग उतना ही रखा जा रहा है, बहुत लो या बहुत ज्यादा बढ़ा के वापस बढ़ाया नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं कई ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू भी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि गवर्नमेंट किस तरीके से ब्रॉडली सिस्टम में लिक्विडिटी लाने की कोशिश कर रहा है। अब यही सिस्टम में लिक्विडिटी और अच्छी होती चले जाएगी अगर ये कंजम्पशन बराबर होता जाए, डिमांड होता जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस मनी की डिमांड करने लगे।
प्रिंट क्यों नहीं करता है, उसका रीजन भी यही है। अगर आपने सिस्टम में ऑलरेडी मनी है हमारे पास, अगर अपन ने और एक्सेसिव एक्सेसिव मनी हमने सिस्टम पे डालने की कोशिश की, तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास उल्टा जो मनी है वही कंज्यूम करने की ताकत नहीं है। एक्सेसिव मनी आ जाने से और ह्यूज मनी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। और अगर एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इट्स लाइक अ कैंसर। ठीक है, जो कैंसर जिस तरीके से फैलता है और पूरी बॉडी को खराब करता है, वैसे ही इन्फ्लेशन जो है एक ऐसा सिस्टम है, अगर उसके ट्रैप में कोई इकोनॉमी आया तो बुरा फंस जाता है। तो वो फंसना नहीं है, इसीलिए आरबीआई क्या करता है, इसको चेक करता रहता है, स्ट्रांगली देखता रहता है, एग्रेसिवली नहीं करता है। आपके मन में होगा कि सर वर्ल्ड में कई जगहों पे इंटरेस्ट रेट 0% है। मतलब 0% मतलब आपको 1 रुपए भी नहीं पे करना है इंटरेस्ट, लोन ले लो और देते रहना इंटरेस्ट। कई कई जगह पे 0.1% है, 0.2% है। तो वो क्यों है? क्योंकि भाई वहां पर उतनी कैपेसिटी है कंज्यूम करने की, तो इंडिया में नहीं है। अगर आपने पैसे यहाँ पर डाला तो लोग खर्च करने की जगह सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो वो उल्टा इन्फ्लेशन पे आ जाने वाला है। साइकिल क्या होना चाहिए? खर्च करने पे आना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो चीजें रोल आउट होती चले जाएंगी, और रोल आउट होंगी तो होगा। यही चीज पहली 2 क्वार्टर में हमारे को मिसिंग थी, खासकर फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, थर्ड क्वार्टर में हमारे पास दिवाली था तो उसमें और इंप्रूवमेंट है। और अगर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर पॉजिटिव रहा, डिमांड बढ़ा, तो शायद हमारा जो क्राइसिस से हम उससे बच के आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ब्रॉडली अब आपको समझना है, एनालाइज करना है। आई एम श्योर आप इसको जब आप करेंगे, पढ़ेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट टाइम से आप इसको रिलेट कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अपना इतना काफी है।